So what do you think about why इंट्रा सेंटर come into the picture और क्या क्या options हैं इसमें जिसके थ्रू हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं? I hope you are able to see my screen, right? Yes, sir. ठीक है, this Just is the like panel. Go ahead, please. just we compare that like on premises and Azure Ready, like so many things are included in Azure Ready, like security purpose, MFA, and all these the group policies all managed we are through the Azure Ready. That's why it's Mhm. much more important right now. What do you think about on-premises Active Directory? On premises, like where we have to create the user account manually and manage all these things manually. ठीक है. So which is applicable? The important part on-premises AD is applicable to take care of the resources which are directly connected with the help of LAN network. इसमें Plan. कंडीशन ये रहती है कि सारी डिवाइसेस जो हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानी प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू उनको Mhm. कम्युनिकेट करनी चाहिए. देन आवर ऑन प्रोमाइसेस एडी विल हेल्प अस टू protect the infrastructure. This is the requirement. All right. Yes, sir. So we already discussed about the procedure to our identification of on-premises Active Directory, right? Yes. I created one virtual machine and also installed Active Directory domain services using Server 2019. And on-premises AD will also help us to create multiple objects and containers. Object मतलब user, group, Yes. computer, share printer, है ना? ये सारी चीजें Yes, आपकी sir. consider की जाती हैं as a object and as an object. और containers में बात करें तो OU, domain और sites आता है containers के केस में Mhm. जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल मैनेज पॉलिसी डेलीगेशन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करता है. Meanwhile, I'm moving to Azure portal that we can proceed and understand the work of Microsoft Intra Admin Center. And today's agenda, we are going to talk about basic identification of Azure Active Directory, and also we'll start our journey with the users management and RBAC services. पहला point, users management, group management, and Mhm. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरबैक सर्विसेज. लास्ट क्लास में Okay. हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि हाउ इट्स वर्क इन द रियल एनवायरनमेंट, क्या क्या यूसेज है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर के. तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे कि अगर आप एक इंडिविजुअल यूजर क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर के ऊपर तो यू कैन मैनेज मल्टीपल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल पोर्टल्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर. दिस इज आवर Azure AD पोर्टल या माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर. Azure AD इसको हम पहले बोलते थे, अभी हम इसको कंसीडर करते हैं एज ए Thank you. kind of intra admin center, right? In case of intra admin center, you know that it's a cloud based Active Directory service. You can say that this is PaaS AD services, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज बेस्ड एडी, जिसमें हम किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल किए बिना बिना किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किए वी आर एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग जस्ट लाइक एज ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर. This is our Azure portal, and over Azure portal, you know that we already talked about ki you can set up user, guest, MFA, and SSPR service, and about the options which are available in our Azure AD properties. So ये सारे points पे बात की थी. अब अगर Mhm. आप एक सिंपल यूजर क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर के ऊपर, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू आर गोइंग टू सेट अप मल्टीपल यूजर अकाउंट ओवर अ पोर्टल like Clark user I'm going to create, or Albert user, या फिर कोई भी एक यूजर आप जो सेटअप कर रहे हैं पोर्टल के ऊपर. with the help of these users you can control and manage multiple cloud platform. MS365 is also product of Microsoft 360 Microsoft, जो कि related है directly to the mailing services. और Azure पोर्टल पे यू नो दैट ये सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है. IES, PES, NSAS, तीनों ऑप्शंस, तीनों पिलर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. प्लस Mhm. यूजिंग Microsoft Inter Admin Center users you can manage your on premises Windows 10 या Windows 11 को कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने MS Intra Connect के जरिए आप अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं जो ऑन प्रोमाइसिस डोमेन आपने स्टैब्लिश किया है. अगर आप प्लान कर रहे हो एवीडी सेटअप करने का तो डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर विल आल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ
manage virtual machines that you establish in our AVD host pool, एंड लास्ट इंट्यून का अगर आप पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हो तो इंट्यून पोर्टल पे जो डिवाइस इनरोलमेंट के लिए यूजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर विल आल्सो हेल्प अस टू कंट्रोल एंड मैनेज द डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ इंट्यून सर्विसेज, राइट? बट Yes. डिफरेंस क्या है? ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो मैंडेटरी है कि यू नीड टू बाय वन सब्सक्रिप्शन, या फिर आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी. विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन वी आर एबल टू कंट्रोल दिस प्लेटफॉर्म. हर एक सर्विस Yes. के लिए आपको या तो लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, या तो आप सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे जाओगे उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए. ऑल गुड? Yes, sir. सो what are the important things that you need to take care? ये अपना ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर है जो मैंने एक डेडिकेटेड नेम teachmecloud.com का नाम से बनाया है, एंड आई क्रिएटेड मल्टीपल यूजर्स यूजिंग ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर DSA.MSC. ये शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से आप Yes. अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को क्या कर सकते हो, लॉग इन करा सकते हो, एंड यू कैन Yes. फाइंड द नंबर ऑफ यूजर्स दैट यू क्रिएटेड ओवर अ पोर्टल. ठीक है. सो आई ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल यूजर अकाउंट. जैसे ये क्लार्क बनाया मैंने, एल्बर्ट बनाया और टाटा यूजर हमने क्रिएट किया है. These users are authorized to manage and control on-premises Windows 10 और Windows 11 machines. Legacy है 1995 से लेकर के अभी तक डिफरेंट तरीके के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किए. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉमन पार्ट एडीडीएस था. ठीक है. अदर सर्विसेज पे उन्होंने बहुत सारा काम किया, सिक्योरिटी पे बहुत सारी चीजें ऐड की, ग्राफिक्स से रिलेटेड ऐड की, मॉनिटर और बैकअप से रिलेटेड चीजों को बहुत ज्यादा चेंज किए. बट एडीडीएस एक ऐसा पार्ट है जिसको कॉमन रखा. ये रोल आपको सर्वर 2000 से लेकर के 2025 तक के बीच में जितने भी सर्वर्स आए उनमें आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज कंसीडर एज ए बैकबोन. एडीडीएस को बैकबोन की तरीके से कंसीडर किया जाता है. ऑल राइट. Yes. बट हमारा जो एजेंडा है वो क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज को कंट्रोल करना है. तो प्लीज मूव टू द माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल, एंड ओवर अ पोर्टल क्लिक ऑन आइडेंटिटी. अंडर द आइडेंटिटीज मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक you are able to see the option of this is identity management, this is identity as a services, और यहाँ पे आपका hybrid infrastructure है, and last related to the security points. Multiple options are available. Let's start our journey with the users management, जो कि आपको मिलेगा Microsoft Entra ID में. Earlier it was Microsoft Azure Active Directory, अभी हम इसको Microsoft Entra ID के नाम से जानते हैं. We are able to see the information about my account, जिसमें आपको डिफॉल्ट डायरेक्टरी दिखाई पड़ रहा है, ऐसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टेनेंट दिखाई पड़ रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट ने असाइन किया है हमारे लाइसेंस के ऊपर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर. दिस इज माय प्राइमरी डोमेन दैट आई परचेज्ड फ्रॉम GoDaddy and directly connected to this particular portal. ठीक है. ये इंट्रा आईडी फ्री लाइसेंस है जो हमें बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. 9 डिफरेंट Okay. यूजर्स वी आर एबल टू सी. बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई पड़ रहे हैं. एप्लीकेशंस जो इसके अंदर बिल्ट इन है वो हमें देखने को मिल रहा है. और नंबर ऑफ डिवाइसेस की लिस्ट की बात करें तो 14 डिफरेंट डिवाइसेस आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दिस टेनेंट. ऑल गुड? Yeah, sir, license Microsoft Entra ID free. It is a by default फॉर 30 days. आफ्टर for दैट यू हैव टू 30 पे days. द अमाउंट. Okay. और Okay. लाइसेंस की जो मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो वी कैन ऑलवेज मैनेज द लाइसेंस फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, मेलिंग सर्विसेज या इंटर आईडी सर्विसेज की बात करें तो वी ऑलवेज कॉन्फ़िगर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर. जो लाइसेंस है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर के थ्रू ही मैनेज होता है. वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस विद द लाइसेंसेस फ्रॉम यूजिंग अनदर पोर्टल. जो बाकी के पोर्टल्स हैं उनमें हमारी हेल्प नहीं होगी रिलेटेड टू द लाइसेंसेस. All Okay. good? Yes, What is and tenant? devices Single which we question. are at, devices which we are added to user account. It's total number, right? Exactly. For Intune, for normal adding of user, Hmm. for to manage and control our on-premises resources. These things are है ना? we have to added like और मतलब जो हमने add किया वही चीज अभी हमें show हो रहा है. Groups, हाँ, these application all are and the device. Yes. एक नहीं, एप्लीकेशन बिल्ट इन है. ये सारे एप्लीकेशन बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है. By ये default. बिल्ट इन एप्लीकेशन है, बट आप अपने तरफ से नया एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं. जैसे कनेक्ट Okay. वाइज का टूल होता है, विच इज Okay. मॉनिटरिंग टूल, राइट? Okay. सो कनेक्ट वाइज टूल पे एसएसओ लगाते हैं, सिंगल साइन ऑन इन Yes. लगाते हैं. तो Mm-hmm. हम क्या करेंगे, पहले उस कनेक्ट वाइज को इंट्रा एडमिन से कनेक्ट करेंगे.
कनेक्ट Okay. करने के बाद जो हमारे इंट्रा एडमिन के यूजर्स हैं उनको ऑथराइज करेंगे कि यू गाइस आर एबल टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ कनेक्टवाइज। फिर Mm-hmm. हम जो एम्प्लॉय रहेंगे उन्हीं एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस पे या उनके यूजर अकाउंट के ऊपर हम अपने कनेक्टवाइज का लाइसेंस असाइन करेंगे, ताकि वो इस टिकटिंग टूल का इस्तेमाल करके क्लाइंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर सके, या हम एंटरप्राइज इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो एक प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। Okay. कुल Yes, sir. टेनेंट क्या होता है? व्हाट इज टेनेंट एंड आर वी ऑथराइज्ड टू ऐड मोर देन वन टेनेंट इन सिंगल अकाउंट? ये स्ट्रक्चर कैसे काम करता है रियल इन्वायरमेंट में? As like you said, tenant ID is unique ID for all user. So like it's Okay. contain the information of all user attributes, password, and all these things. Mm-hmm. Anything else that we can add regarding our connect ID? Sorry, tenant ID. Tenant ID. All the information of the user and subscriptions, license, all these have a content in tenant ID. ठीक है, cool. So let me help you to understand about the actual use cases of our the structure of tenant environment, Yes. है ना? जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो Mhm. इंटायर सेटअप यूज करते हैं पोर्टल के ऊपर वो किस तरीके से रियल एनवायरनमेंट में वर्क करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा admin center, and also about the accounts, because without the account we cannot do anything. अपने पास एक अकाउंट होगा, इनिशियली हम अकाउंट पे जाएंगे एंड आफ्टर दैट अकाउंट विल कनेक्ट विद टेनेंट, टेनेंट विल कनेक्ट विद डिफरेंट थिंग्स। Okay. डे वन व्हाट आई डिड, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब Mhm. डे वन की बात करें तो डेफिनेटली यू नीड टू साइन अप योरसेल्फ, ठीक है? Yes. सो जो साइन अप के लिए आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे ना, विच इज कंसीडर्ड एज ए रूट अकाउंट। तो मेरा जो रूट अकाउंट है विच इज मनन रावत 24 at outlook.com. Is that clear? This is my Yes. root account because this is my ID. This is my Microsoft ID that I used to sign up myself for the global certification. तो इस आईडी का इस्तेमाल करके मैंने ग्लोबल सर्टिफिकेशन किया और इसी आईडी के जरिए मैंने एमसीटी कंप्लीट किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस आईडी को अपने डेटाबेस में सेव कर लिया एंड ऑथराइज मी टू गेट द एक्सेस ऑफ $150 एवरी मंथ एज ए कॉम्प्लीमेंट। जब तक मेरा एमसीटी सर्टिफिकेट लाइव रहेगा या एक्टिव रहेगा, Mhm. हमें $150 मिलते रहेंगे। नंबर वन। Okay. सेकेंड, अगर आप किसी कंपनी के लिए अकाउंट सेटअप कर रहे हो तो वो आपका रूट अकाउंट कंसीडर किया जाएगा, विच इज वेरी सेंसिटिव। आप गलती से भी इस अकाउंट के बारे में किसी एम्प्लॉय या किसी मैनेजर या किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पर्सन को क्रेडेंशियल नहीं शेयर करेंगे। मैनेजर भी अगर हमसे डिस्कस करता है तो विल क्रिएट अ डिफरेंट रोल बेस्ड अकाउंट एंड शेयर विद देम। रूट अकाउंट का एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास रहता है। डू नॉट शेयर विद एनी पर्सन, चाहे वो एम्प्लॉय हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, एडमिन हो या टेक लीड हो या मैनेजर हो। डू नॉट शेयर विद एनीवन। क्लियर? सो दिस इज माय अकाउंट। अकाउंट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेनेंट। सबसे पहला जो पॉइंट आता है टेनेंट Mhm. आता है, ठीक है? टेनेंट आईडी इज अ यूनिक बेस्ड ऑन हेक्साडेसिमल नंबर, और इस आईडी के जरिए बहुत सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। बैकअप, रीस्टोर, कोऑर्डिनेशन विद आवर सर्विसेज विद माइक्रोसॉफ्ट, migration, any type of migration that you want to perform, definitely tenant id will help you a lot. Tenant id will connect with custom domain, ठीक है? Mhm. ये जो स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट विद कस्टम डोमेन। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कस्टम डोमेन? कस्टम डोमेन मींस दैट वी कैन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट डोमेन प्रोवाइडर्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कस्टम डोमेन के केस में एक आपको डिफॉल्ट डोमेन मिलेगा, बिकॉज डे वन कोई भी लाइक एज ए क्लाउड इंजीनियर नॉट गोइंग टू परचेज एनी काइंड ऑफ डोमेन। तो अगर उसके पास डोमेन नहीं है फिर भी वो इस्तेमाल करेगा, एंड द डोमेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ठीक है? ये आपका डिफॉल्ट डोमेन हो गया। बट आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी कंपनी को, सो लाइक आई एडेड टीएम क्लाउड डॉट इन, जिसका मैं रेंट पे करता हूँ गोड आईडी को हर साल। क्लियर? एंड Yes. number of domain that you can attach,
इट्स नॉट मैंडेटरी कि 2 डोमेन 3 डोमेन, आप मल्टीपल डोमेन्स को अटैच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अदर डोमेन दैट आई परचेज, टीच मी क्लाउड डॉट इन के नाम से मैंने एक डोमेन परचेज कर रखा है. I can directly associate my teachmecloud.in domain and tmcloud.in domain directly to the tenant or directly to the tenant ID. अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या आता है? अब कॉन्सेप्ट आता है सब्सक्रिप्शन का. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्कशन होगा लाइसेंसेस का. सो ये जो पार्ट है सब्सक्रिप्शंस एंड लाइसेंसेस, डेफिनेटली एक टेनेंट आईडी से मल्टीपल लाइसेंस खरीद सकते हो, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो. सेफ्टी पर्पज के लिए कंपनी ऑलवेज पुट यूज two subscription minimum at a same time as per the types of services that you implemented. जितनी ज्यादा सेंसिटिव सर्विसेज आप इंप्लीमेंट करोगे, जितने ज्यादा वैल्यूएबल सर्विसेज आप ऐड करोगे, उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी बढ़ जाती है उनको टेक केयर करने की. थिंक अबाउट, मेरा जो अकाउंट रिन्यू होता है वो 17th ऑफ एवरी मंथ है ना, 17 तारीख को हर महीने अकाउंट रिन्यू होता है. $150 मुझे क्रेडिट मिल जाते हैं. एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने अकाउंट सेटअप किया 10th ऑफ एवरी मंथ, 10 तारीख को आपका अकाउंट रिन्यू होता है. कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने की वजह से या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से ऑटो डेबिट नहीं हो पाता, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें क्या करता है, सारी सर्विसेज को डिसेबल कर देता है. अगर आपकी पेमेंट ऑन टाइम नहीं हुई माइक्रोसॉफ्ट को, तो डेफिनेटली वो हमारी सर्विसेज को डिलीट नहीं करेगा, सारी सर्विसेज को डिसेबल्ड कर देगा. डिसेबल का मतलब है कि जो हमारी सर्विसेज रन कर रही हैं क्लाइंट के लिए, वो इफेक्टेड हो जाएंगे, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द रिसोर्सेज. अब कंपनी क्या करती है, क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी अगर चेंज हुई, विच इज कॉमन थिंग, जो पॉसिबिलिटी है, अगर क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी जो है व्हाट वी कैन से दैट खत्म हो गई या फिर डिसेबल हो गया या व्हाटएवर कोई प्रॉब्लम हो गई, आपका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक ऑल्टरनेट सब्सक्रिप्शन आपको अकाउंट में लगा के रखना पड़ेगा, ताकि इमीडिएटली आप अपनी सर्विसेज को एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें. राइट, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए क्लाइंट को. का जो डाउन टाइम है, वो डाउन टाइम बचाने के लिए वी नीड टू पुट 2 डिफरेंट सब्सक्रिप्शन ओवर अ पोर्टल. अब लाइसेंसेस की बात करें, अगर हम बात करें तो डे 1 हमने बात की थी कि सब्सक्रिप्शन कई तरीके के हो सकते हैं. फ्री ट्रायल हो सकता है, इनिशियल डेज में वी कैन प्रोसीड विद द फ्री ट्रायल. दूसरा हमने MSDN के बारे में बात की थी, और तीसरा पे एज यू गो के बारे में बात की थी. इज दैट करेक्ट? तो ये अपने पास सब्सक्रिप्शन हो गए एज्योर के. अब लाइसेंसेस की बात करें तो P1 लाइसेंस या P2 लाइसेंस, और इनको हम बोलते हैं MS इंट्रा लाइसेंस. इनको इंट्रा लाइसेंस के नाम से कंसीडर किया जाता है. Why these licenses are important? Because with the help of these licenses, we are able to control and manage what? Security. Conditional access आपको कॉन्फ़िगर करना है, SSPR आपको कॉन्फ़िगर करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है. Whatever security related task that you are going to perform, you always go with this way. आपको इस मेथड के थ्रू मैनेज करना पड़ेगा. You always proceed with this particular method. All done? Yes, sir. So, like, So, can I repeat? yeah, please, Like, please. just like root account. Root account is like provided by our organization. It's a security, as a security purpose. We cannot share with anyone. Like only Correct. admin have access to that to check Correct. all these things. Okay. Right. So a root account is connected with the tenant ID. Correct. It means कि tenant ID have like have consume root account, like they can store root account for all the user. We can Correct. say. Right. Okay, and the custom domain like tenant ID is like stored in custom ID domain. No, custom domain is part of tenant ID आप बोल सकते हो. अच्छा. कस्टम डोमेन Okay. जो है वो टेनेंट आईडी का पार्ट रहेगा. तो कस्टम डोमेन वो हो गया जो हम कस्टमाइज करके अपने लिए एज अ डोमेन बनाते हैं, वो जो कुछ हम भी हो खरीदते सकता हैं, है. नहीं नहीं नहीं, हाँ. जो हम खरीदते हैं, बनाते नहीं. बनाने में अच्छा. तो कोई सा भी नाम, यू आर ऑथराइज टू कॉन्फ़िगर विद एनी नेम, abc.com, xyz.com, राइट. Okay. हमें यहाँ पे पब्लिक डोमेन को इंट्रोड्यूस करना है. प्राइवेट डोमेन Okay. कभी भी काम नहीं करेगा, पब्लिक डोमेन काम करेगा, क्योंकि
इस डोमेन के जरिए आप अकाउंट को लॉग इन करोगे, मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करोगे, इंट्यून पे डिवाइसेस को इनरोल करोगे, तो डोमेन मस्ट बी लाइव, डोमेन मस्ट बी अवेलेबल ऑन क्लाउड, क्लाउड इन द क्लाउड, सेंस जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं उनसे आपको रेंट पे खरीदना पड़ेगा इसको, तो दैट एंड यू इज अ हैव टू पे कस्टम द रेंट। डोमेन। एग्जैक्टली, लीज देना पड़ेगा, इसके लीज पे लेना पड़ेगा। ओके, ओके, गॉट इट। कूल, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को आप अपने माइंड में रखोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द बेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्राइटी। और अगर हमारा बेस क्लियर है तो आपको जो आने वाले टाइम पे प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सी सिक्योरिटी कहाँ पे लग रही है, कब आप डोमेन पे सिक्योरिटी लगाएंगे, कब आप ग्रुप पे पॉलिसी लगाएंगे, कब आप इंडिविजुअल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगाएंगे, तो यू कैन इजिली सेग्रीगेट द पॉलिसी, राइट। ओके, कभी भी डोमेन पे पॉलिसी, हर एक पॉलिसी डोमेन के लिए नहीं होती। पॉलिसी ऑलवेज अप्लाई अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट। ओके, पॉलिसी ऑलवेज वी नीड टू कॉन्फ़िगर एज पर द रोल ऑफ एम्प्लॉय, उसकी आईडी पे उसके रोल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि ओके दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस टास्क, डू वन थिंग, इसके ऊपर ये पॉलिसी लगनी चाहिए। ओके। ऑल गुड। या वन 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 थिंग, जिस लाइक आपने कहा था कि हमें एक और लाइसेंस सब्सक्रिप्शन ऐड ऑन करके रखना चाहिए कि कल को अगर पहला वाला लाइसेंस वो हम एक्सपायर हो करेक्ट। जाता है तो वो हम कनेक्ट। तो सर जैसे अभी मैंने एक लाइसेंस लिया, उसका हमने पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम जो दूसरा वाला लाइसेंस लेंगे उसके लिए भी हम पे करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट तो हम दो दो सब्सक्रिप्शन के लिए पे नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सब्सक्रिप्शन इज नॉट अ काइंड ऑफ पेड सर्विस फ्रॉम डे वन। ओके, ओके, अगर हमने मैंने जितना पे यूज एज यू गो किया रखा है उतना पे ऑल्टरनेट, करेंगे। एग्जैक्टली मेरा तो सब्सक्रिप्शन, मैं 6 महीने से पिछले एक सब्सक्रिप्शन रख रखा हूँ ब्लैंक, ब्लैंक इन द सेंस नो सर्विसेज एसोसिएटेड में विद माय अनदर सब्सक्रिप्शन, सो व्हाई आई नीड टू ओके, पे, है ना। यस यस, आप एक गॉट साल इट, तक रखो, उसका कोई चार्जेस नहीं जाएगा, आपकी जो इनवाइस आएगी जीरो अमाउंट की आएगी। मैं ओके, पिछले 2 साल से अमेजन के का पोर्टल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जरूरत ओके, पड़ने पर सर्विसेज इंप्लीमेंट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। बिल कितना ओके, आएगा? यस, हार्डली 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, एज पर द यूसेज। okay. And है ना। here you mentioned that license P1, P2. एग्जैक्टली, लाइसेंस कॉस्ट आर रिकरिंग, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बेस्ड ऑन पेमेंट, बेस्ड ऑन यूसेज, सॉरी, Hmm. ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइसेंसेस आर रिकरिंग पेमेंट मेथड। मीन्स Okay. अगर आपने आज लाइसेंस परचेज किया, राइट, और यू पेड फॉर एग्जांपल 700 रुपीज फॉर P1 लाइसेंस, सो Mm-hmm. दिस लाइसेंस विल बी एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 30 डेज। अगले 30 दिन बाद अगर आप लाइसेंस को कैंसिल नहीं करते हो, आपका Mm-hmm. लाइसेंस ऑटो पेमेंट पे लगा है, तो नेक्स्ट Yes, आफ्टर 30 डेज यू हैव टू पे अनदर 700 रुपीज। 700 exactly. Got it. ऑल गुड। Yes. ठीक है, सो ये दोनों चीजें में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सब्सक्रिप्शन इज बेस्ड ऑन पे एज यू गो, Yes, especially yes, in case yes. of Azure and AWS and Google Cloud, and licenses are reoccurring that you have to pay the amount no matter आप पूरे महीने कुछ नहीं यूज कर रहे हो, Mm-hmm. फिर भी आपका 700 पेमेंट You have to जाएगा, pay. राइट। Yes, जस्ट लाइक एज OT प्लेटफॉर्म के जो सब्सक्रिप्शन yes, होते हैं उसी तरीके से। exactly. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज। टेनेंट भी आ गया इसमें, कस्टम डोमेन भी आ गया, हमारे लाइसेंसेस और सब्सक्रिप्शन भी आ गए। How we can start using these resources? So सबसे पहले हमें दो चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले we are going to talk about MS Intra objects। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं objects, and second we are going to talk about RBAC service। ठीक है, दो पे बात करते हैं अभी, then step Mm-hmm. by step we'll add multiple things। ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेनली, एक है यूजर्स और दूसरा है ग्रुप। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट नहीं मिलेगी हमें। और आरबैक की बात करें तो आरबैक इज आल्सो डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट, जिसमें आपका एक आ जाता है बिल्ट इन एंड दूसरा होता है कस्टम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, Mm-hmm. ये दो तरीके की आपको आरबैक सर्विसेज देखने को मिलेंगी। And these RBAC services, built-in RBAC service or custom RBAC service are associated with your user or group। आप इनका इस्तेमाल एक इंडिविजुअल यूजर के लिए कर सकते हो, आप इनका इस्तेमाल डायरेक्टली
एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कर सकते हो। जब आप ग्रुप के लिए अप्लाई करोगे तो 100% जितने भी यूजर्स होंगे एग्जिस्टिंग टाइम पे, करंट टाइम पे जितने भी यूजर्स हैं, उन सभी के ऊपर वो RBAC सर्विस अप्लाई हो जाएगी। अब Yes. नया कोई यूजर उस ग्रुप का पार्ट बन रहा है, उसके ऊपर भी सेम पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, राइट? सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल। अब यूजर्स की बात करें तो यूजर भी कई कैटेगरी में डिवाइडेड है। क्रिएट यूजर, पहला हम बात करते हैं क्रिएट यूजर, दूसरा हम बात करते हैं गेस्ट यूजर, ठीक है, और तीसरा हम बात करने वाले हैं सिंक्रोनाइज्ड यूजर, सिंक यूजर्स। Okay. हाउ मेनी मेथड वी हैव टू सेट अप यूजर, बल्क यूजर वगैरह इसी में आ जाएंगे। Okay. आप डायरेक्टली यूजर क्रिएट कर सकते हो पोर्टल पे, आप गेस्ट बना सकते हो फॉर टेम्परेरी बेसिस पे, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो अपने यूजर्स को ऑन प्रीमाइसेस से। ऑल डन। Yes. ग्रुप ऑल्सो डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट। ग्रुप की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज व्हाट वी कैन से दैट सिक्योरिटी ग्रुप, और दूसरा आपको मिलेगा M365 ग्रुप, M365 group. Huge gap between these two different types of groups that we can create over a portal. जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, that help us a lot. किसके लिए? परमिशन के लिए, Permissions. Yes. है? परमिशंस Yes. के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। आप इसका इस्तेमाल करोगे डेलीगेशन के लिए। यू कैन यूज द सिक्योरिटी ग्रुप फॉर कंट्रोल के लिए, राइट? आप इसका इस्तेमाल करोगे पॉलिसीज के लिए। But what about Microsoft 365 group? M365 is basically designed for mailing services. इनका हम इस्तेमाल करेंगे मेलिंग सर्विसेज के लिए। This is the actual use cases. Security Okay. group and M365 group. All done? Yes. बेसिक ओवरव्यू ऑफ आवर RBAC सर्विस। तो RBAC क्या होता है? RBAC में अभी तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिल्ट इन और कस्टम RBAC सर्विसेज। RBAC is applicable for two different types of practicals we can implement with the help of RBAC. पहला जो practical part है ना, RBAC for portal or subscription access, and second one RBAC for resources access. Can you please let me know what you understand about the gap between subscription access and resource access? Resource access, like we have to apply the access to the user, Okay. and subscription access, so like no idea what subscription is. नहीं, हम जो ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, दोनों ही तरीके के एक्सेस यूजर्स के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं या ग्रुप के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं। जब हम अपने यूजर को सब्सक्रिप्शन का एक्सेस देंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। Okay. You authorize your user to perform the task to manage storage account, ठीक है? अब ये RBAC सर्विस अगर आपने यूजर को असाइन की तो वो स्टोरेज पे कुछ भी करेगा, एग्जिस्टिंग स्टोरेज को मैनेज करेगा, नए स्टोरेज क्रिएट करेगा, security policy, whatever options that are available in the properties of storage account, you can do that. लेकिन जब बात करते हैं रिसोर्स एक्सेस की, तो 10 स्टोरेज अकाउंट आपने बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल एज ए एडमिन आपने 10 डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट यू क्रिएटेड ओवर अ पोर्टल, बट यू डिसाइडेड स्टोरेज नंबर 5 इज एप्लीकेबल फॉर दैट Okay. यूजर, स्टोरेज नंबर 2 फॉर दिस यूजर। ऐसे करके आप सारे स्टोरेज अकाउंट Got को it. इंडिविजुअल यूजर ऑथराइज कर सकते हो। Yes. आई Got होप it. यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। Yes. ठीक है, Yes. Yes. ग्रेट। हम मूव करते हैं पोर्टल के ऊपर। पहले हम यूजर में दो यूजर को डिस्कस करते हैं, गेस्ट यूजर और अपना व्हाट वी कैन से दैट क्रिएट फ्रेश यूजर डायरेक्टली विद हेल्प ऑफ पोर्टल। सिंक्रोनाइज के लिए अपने पास ऑन प्रीमाइसेस एडी लगाएंगे और उस ऑन प्रीमाइसेस एडी यूजर्स को क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे, व्हिच इज अ सेपरेट पार्ट। Going back to the portal, and this is our identification of Microsoft Intra Admin Center. Let me click on the user account and we are able to see multiple options are available.
बहुत सारे यूजर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एल्बर्ट, अलीबाबा, क्लार्क, जैक्सन, टाटा, टेलनेट, टेस्ट, टोनी, multiple users are available. Identification of user is also important for us. On the page of users management, we are able to see multiple options are available. I'm talking about the highlights about user, display name, user principal name, user type, agent type, on-premises sync, identity and company name, and the last one is creation type. These informations are available. Display name में जो भी आपका calling name होगा, UPN में user principal name that allow us to log in another Azure portal, Login. और user type में members हैं, right? These all are the kind of members. और agent में which we haven't installed any kind of agent to these users so far. Or on premises में that will filter the users that coming from on premises and the users that you created directly from portal. अगर नो है तो इसका मतलब आपने उस यूजर को डायरेक्टली पोर्टल से क्रिएट किया Directly है। create. अगर यूजर के सामने यस दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब वो यूजर हमारा एज्यूर पोर्टल पे नहीं क्रिएट किया गया, उसको हमने ऑन प्रेमाइसेस से सिंक्रोनाइज करके पोर्टल पे सिंक्रोनाइज किया है, एंड देन we are performing kind of hybrid infrastructure. This is the identity. तो unfortunately all the users are associated with on Microsoft.com. ज्यादातर users जो है हमारे on Microsoft.com से connected हैं। एक user है वो Microsoft account है, क्योंकि this is my root account. ये हमारा root account है जिसमें हमारा tenant associated है. All good? On the page सर we can find एजेंट यहाँ पे क्या हुआ? एजेंट. this one. Yes. Agent is basically a kind of API. It's a type of application that you can install and configure with your user account. अगर आपने अपने यूजर को एजेंट असाइन किया है और वो यूजर ऑन प्रोमाइसेस के विंडोज 10 या विंडोज 11 पे लॉगिन करता है, आप उस एजेंट का एक्सेस उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कर सकते हैं। सिंपल। Okay. Agent is a third party application that we can attach, it's a type of API that we can attach with our Microsoft Intra Admin Center users. Azure Ready के यूजर को हम एजेंट असाइन कर सकते हैं। All done. Yes, sir. ठीक है, अभी हमने सारे यूजर्स डिलीट कर दिए, that I can show you from scratch. Guest user and invite user and create fresh user, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। Talk about the Yes. normal user, हम यहाँ पे normal user create करेंगे, कोई सा भी नाम रख लेते हैं, like I decided to create user with name of Telnet. tmcloud.in, this is my custom domain that I associated. अगर यहाँ पे आप drag and drop करोगे तो आपको दो डिफॉल्ट डोमेन भी देखने को मिलेंगे जो एज ए कॉम्प्लीमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड कर रखा है, and these domains are associated with onmicrosoft.com, mail.onmicrosoft.com. Okay. mail.onmicrosoft.com is a type of alias and this is the default domain that provided by Microsoft. हम इसको अपने कस्टम डोमेन पे जो ऐड किया है उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। Type the display name. So again, I'm going to use same name as a display, but हम different रख सकते हैं, UP name और display name अलग हो सकते हैं, but confusion ना हो इस वजह से हम दोनों का name same ही रख रहे हैं। I don't want to set up a default password. I'm going to create my own temporary password. ये हमारा temporary password होगा जो कि login के टाइम पे हमें ऑप्शन देगा, you have to reset it because you are using temporary password. All good. Account must be enabled Yes. that anyone can log in your account. नेक्स्ट पे जाएंगे एंड दिस इज एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय टाइप, all the information are considered as a Attributes. attributes of our user account. ये सारे attributes की तरीके से कंसीडर किए जाएंगे। So what is the नेक्स्ट, unique things for that user? Like if the same name have two users, so how we can identify that two users? नहीं नहीं नहीं, डिस्प्ले नेम एक हो सकता है, ठीक है, डिस्प्ले Mm-hmm. नेम एक हो सकता है, लेकिन Mm-hmm. यूपी नेम मस्ट बी डिफरेंट, UPN. यूजर प्रिंसिपल नेम Yes. अलग हो सकता है। तो सर यूजर प्रिंसिपल नेम हम अब खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर जस्ट लाइक अगर मैं नाम अभिलाषा नाम से दो पर्सन है तो हम डिस्प्ले नेम तो सेम हो गया अभिलाषा अभिलाषा, बट यूपीएन जो एग्जैक्टली, होगा
वो हम हाँ कैसे करेंगे? जस्ट लाइक हम ऑन प्रोमाइसेस में मैं जब काम करती थी तो सेम हाँ नेम होता था, तो हम 1 2 3 जैसे अगर दूसरा पर्सन में हम अभिलाषा 1 ऐसे करके हम करते थे कंसीडर, तो सेम उसमें एग्जैक्टली भी। एग्जैक्टली। तो उसमें हम डिस्प्ले नेम जो लॉगिन नेम होगा उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। ओके, यस, न्यूमेरिक वैल्यू लाइक न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी मेंशन कर दिया, डॉट लगा दिया, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया है ना, सरनेम यस। लगा दिया, ऐसे करके हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा लॉगिन नेम के लिए, नॉट फॉर डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम आप कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल डन। यस सर। ठीक है, सो ये हो गया एट्रीब्यूट्स। इसमें आप पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूजर की, क्लाइंट की, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे। एंड दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। जहाँ पे असाइनमेंट का ऑप्शन आता है, असाइनमेंट में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ऐड ग्रुप, और लास्ट में है ऐड रोल। सो बोथ आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जरिए वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क रिलेटेड टू असाइन द राइट्स टू आवर यूजर। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रोल। रोल्स क्या होते हैं? अगर हम थोड़ा सा हेल्प करें, यहाँ पे क्लिक करें रोल्स पे, तो ये आपके डायरेक्टरी रोल्स हैं। यू आर एबल टू सी मल्टीपल रोल्स आर अवेलेबल, n number of roles are available. You can find group administrator, global administrator, hybrid identity administrator, right? यहाँ पे Microsoft 365 बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हर एक रोल के सामने आपको उसका डिस्क्रिप्शन मींस उसकी डिटेल्स मेंशन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ टास्क यू आर एबल टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रोल्स। अगर आप अपने यूजर को ये रोल असाइन करोगे तो आपका यूजर ये सारी एक्टिविटी कर पाएगा, वो ऑथराइज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, ठीक है। अब ये बंदा कैन रीसेट पासवर्ड फॉर नॉन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। जितने भी नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स हैं, जिनको एडमिन की राइट्स नहीं है, जिनको एडमिन का मेंबर्स नहीं बना रखा, उन सभी यूजर का पासवर्ड ये बंदा खुद रीसेट कर लेगा लाइक एज एन स्टैंडर्ड एज एन अकाउंट। यूजर, लाइक एज स्टैंडर्ड अकाउंट। क्लियर? तो यस। इसमें मल्टीपल रोल आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, सेलेक्ट करके, राइट? कि हमने इसको इसको मेंबर ऑफ 365 बैकअप भी बना दिया, इसको हमने ऑफिस एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। 1 2 3 4 तरीके का टास्क ये परफॉर्म कर पाएगा। ये हमने कहाँ से ऐड किया? रोल्स में जाकर के असाइन किया, 1 बाय 1 करना पड़ा। जितने भी यूजर बनाओगे 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इन सभी रोल्स को ना आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में रख सकते हो। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना रखे हैं, क्लास का और डेमो का। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, इनके अंदर कई सारे रोल्स हम पहले से असाइन कर रखे हैं। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग रोल्स सेपरेटली टू मल्टीपल रोल्स टू सेम यूजर, या तो या आप इस मेथड से जा सकते हैं, या फिर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बना करके मल्टीपल रोल को ऑथोरिटी दे देंगे, और जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल असाइन करेंगे उस यूजर को, तो आपका यूजर ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ऑल गुड? यू कैन, आप कह रहे हो कि हम एड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ये कर सकते हैं, पहले ही एक हम यूनिट बना के रख लेंगे उस ग्रुप का, 10 15 ग्रुप, 10 15 हम्म, ग्रुप का, फिर रोल उसको का हम रोल का डायरेक्टली, हाँ, रोल का, और उसको जाके एड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जाके वहां पे जो फोल्डर बना है उसमें सेलेक्ट कर देंगे, वो डायरेक्ट जितने ग्रुप्स हमने ऐड कर रखा वो असाइन हो जाएगा उस यूजर को। हमें ऐड रोल करने की जरूरत नहीं है 1 by 1, राइट? एग्जैक्टली, यस। ओके। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। आई डोंट वांट टू मेक इट मेंबर ऑफ एनी डोमेन। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज द फाइनल डिटेल। ये वेरिफिकेशन पेज भी बोला जाता है, जहाँ पे आप अपने जो भी टेम्परेरी पासवर्ड दिया ना उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। इन केस आप भूल चुके हैं क्रिएट करते टाइम पे, तो यू कैन यूज दिस मेथड। तो दैट पासवर्ड ओके? ये यूजर को शेयर डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाता है, या फिर हमें मेल करना पड़ता है यूजर को? मेल करना पड़ता है। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज अ टाइप ऑफ टूल
है ना, जिससे वो जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा उनको फॉरवर्ड हो जाएगा ऑटोमेशन के थ्रू। हाँ, तो हमें यहाँ पे अभी मैनुअल, अगर इस अभी जो हम कर रहे हैं उसमें हमें मैनुअली भेजना पड़ेगा मैनुअल पासवर्ड। भेजना पड़ेगा, हाँ अभी मैनुअल भेजना पड़ेगा, और ये टेम्परेरी पासवर्ड होगा। इट विल बी वही अ तो टाइप ऑफ वन टाइम। टेम्परेरी पासवर्ड, ये एक तरीके का टेम्परेरी पासवर्ड कंसीडर किया जाएगा। और सर जो आपने रोल दिखाया था मुझे अभी, बहुत सारा मल्टीपल, वो बाय डिफॉल्ट एजवर में होता है वो, राइट? या हाँ बाय एज पर द डिफॉल्ट, प्रोजेक्ट नहीं नहीं, हम? these all are the roles are built in role, you can consider it as a built in role, और उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो आप अपना रोल क्रिएट करके। ऑल डन। यस। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट करते हैं। आर यूजर इज रेडी टू यूज, जो हमने अभी टैलेंट के नाम से बनाया था। अब सेम यूजर इज अप्लीकेबल टू एक्सेस मल्टीपल पोर्टल। आप इस यूजर का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास विंडोज 11 की मशीन है ना, तो ये जो विंडोज 11 की सिस्टम दिखाई पड़ रहा है, आई कैन मैनेज माय ऑन प्रीमाइसेस मशीन विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर। मैं इस मशीन को लॉग इन कर सकता हूँ इस यूजर के जरिए। ठीक है, मैं इस पे राइट्स दे सकता हूँ, पॉलिसी लगा सकता हूँ, एडमिन के राइट्स दे सकता हूँ, कोई भी चेंजेस करना है आई कैन डू दैट। हम इसके जरिए इनको मैनेज कर पाएंगे। ऑल डन। यस। नेक्स्ट लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, थोड़ा सा और इसमें हम आगे प्रोसीड करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूज केसेस। ठीक है, वी आर गेटिंग अनदर विजार्ड, क्योंकि ये क्या था, टेम्परेरी पासवर्ड था। यस। अब कस्टमर जो है जिसको हमने ये रोल असाइन करना है, अब वो बंदा खुद से पासवर्ड अपना मेंशन करेगा, क्योंकि एडमिन इज नॉट ऑथराइज्ड। ओके। एडमिन इज नॉट ऑथराइज्ड टू गेट टू नो, या अपनी मर्जी से वो पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकता। किसी भी एम्प्लॉय की पासवर्ड की डिटेल रखना एडमिन इज आल्सो नॉट ऑथराइज्ड, है ना, विच इज अगेंस्ट पॉलिसी, विच इज नॉन कंप्लायंस। हमने अपने पोर्टल को माइक्रोसॉफ्ट एजूर पोर्टल को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एमएफए रिक्वायर्ड, सो वी आर ट्राइंग टू एक्सेस आवर यूजर लॉगिन Microsoft Azure portal with the help of user that we created. ठीक है, full access of our Azure portal, we are able to see the all options are available on portal, सभी सर्विसेज हमें यहाँ पे accessible है। ठीक है, only
like visible हैं. I'm not saying कि we are authorized to configure any service or purchase any resources from portal. We are not Okay. authorized for so far because अपने पास कोई rights नहीं है, right? We don't have rights to get the access of services. All okay, please? Yes, yes, sir. ठीक है. सो अगर हम किसी भी सर्विस को कंप्यूट ऑप्शन या स्टोरेज को या सिक्योरिटी को ओपन करें तो आई डोंट थिंक कि हमें उसमें कुछ ऑप्शन मिलेगा. ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे. सी इट लुक लाइक दिस. Why we are getting these types of error or these types of option on our portal? Because So we आपका जो don't have अकाउंट है ना, access. एग्जैक्टली आपने कोई भी राइट्स नहीं दे रखे हैं इसको. Mm-hmm. Yes. We haven't assigned any rights to this particular user. हमने किसी यूजर को कोई भी राइट्स नहीं असाइन कर रखा है. Okay. That's the reason we are not able to get the access of this particular page. हम इस पेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. अब Okay. we have a two different method. Think about. हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन आप अपने इस यूजर को सब्सक्रिप्शन का आरबैक प्रोवाइड कर सकते हो या Yes. आप इस यूजर को Role add कर सकते you can assign rights for individual service. हैं. Oh, yes. All done. Yes, sir. So now अगर हम इसको सब्सक्रिप्शन का असाइन कर देंगे, we are going to assign the rights to the subscription. तो उस सिचुएशन में, राइट, उस सिचुएशन में it will work to manage other services. Yes. And if you want to assign the specific role, ठीक है, अगर आप इसको specific role assign कर रहे हो कि नहीं, this user will be applicable for only and only स्टोरेज सर्विसेज, तो वो बंदा क्या करेगा, सिर्फ स्टोरेज सर्विसेज को ही Storage एक्सेस को access कर पाएगा, करना अदर है. Yes. सर्विसेज को एक्सेसिबल नहीं होगा. ऑल डन. Yes, sir. So this is the actual concept. This is Mm-hmm. Got it. the actual concept of our RBAC services. ये हमारा RBAC सर्विस का एक तरीके का कॉन्सेप्ट रहेगा. Mm-hmm. Got it. नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल. We are not able to see any kind of user group storage account so far. हमें कोई भी एक्सेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे स्टोरेज का. एक बार रूट के पास चलते हैं एंड लेट्स सी हाउ मेनी स्टोरेज अकाउंट आर अवेलेबल. अगर नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे. Go to the storage and click on storage account. This is my root account. ये रूट अकाउंट है. जीरो स्टोरेज, यहाँ पे भी कोई स्टोरेज नहीं है, बट आई कैन क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट. ये हमारा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, क्लास स्टोरेज. स्टैंडर्ड एंड जियो रेडंडेंट क्रिएट करते हैं.
इन प्रोग्रेस, जैसे रेडी होता है वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। Yes. सर मुझे अगर एजवर पोर्टल में एक्सेस करना हो फिर कैसे करूँ? साइन अप फॉर फ्री ट्रायल अकाउंट। रिटर्न अकाउंट, ओके। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट अपने रूट अकाउंट के लिए एप्लीकेबल हो गया। दिस इज माय रूट अकाउंट और यहाँ पे हमें एक स्टोरेज अकाउंट दिखना स्टार्ट भी हो गया है, स्टोरेज क्लास स्टोरेज 1980 और अनफॉर्चुनेटली टेलनेट के पास इसके राइट्स नहीं होंगे क्योंकि हमने कोई भी आरबैक सर्विसेज के लिए कॉन्फ़िगर नहीं की। ठीक है, स्टिल वी आर नॉट एबल टू सी एनी स्टोरेज अकाउंट, जबकि रूट के पास एक स्टोरेज अकाउंट अवेलेबल है। ओके। नेक्स्ट, गोइंग बैक, इस पर्टिकुलर सर्विस के ऊपर राइट क्लिक करो आप। राइट क्लिक करने के बाद एक्सेस कंट्रोल यानी आईएम पे क्लिक करना है हमें। आईएम के जरिए हम अपने इंडिविजुअल सर्विस को ऑथराइज कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक अकाउंट, फॉर द स्पेसिफिक पर्सन। तो आप ऐड रोल पे जाओ, रोल असाइनमेंट पे जाओ, व्हाट टाइप्स ऑफ राइट्स दैट यू वांट टू प्रोवाइड टू द यूजर टेलनेट, आप वो राइट्स असाइन करो। ये आपका जॉब फंक्शनल रोल है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज्ड है। तो कंट्रीब्यूटर बना सकते हो, ऑनर बना सकते हो, स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हो इस यूजर को, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैं इसको ऑनर बना ओके। रहा हूँ ताकि ही कैन परफॉर्म ऑल द टास्क, grant full access to manage all resources including the ability to assign role in RBAC। ये हमने ऑनर बना दिया स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट मेंबर्स, मेंबर का मतलब है यहाँ पे यूजर अकाउंट जिसको आप राइट्स देना चाहते हो। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड राइट्स टू टेलनेट यूजर, हम टेलनेट को अथॉरिटी देना चाहते हैं कि ही विल बी एबल टू एक्सेस द सर्विसेज। नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड दिस इज कंडीशन, ऐड रोल एंड प्रिंसिपल कंडीशन, ताकि आगे हम अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकें। पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑर्केस्ट्रेशन रोल्स पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, प्रिविलेज पे जाएंगे और ऑनरशिप दे देंगे। सेव किया, सेव किया, रिव्यू एंड असाइन कर दिया। अब ये रोल असाइन करने के बाद हम बैक आ जाएंगे अपने टेलनेट के पास। थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका जो स्टोरेज अकाउंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज ऑनर। टेलनेट कुछ भी परफॉर्म कर पाएगा उस स्टोरेज की सर्विसेज के साथ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये स्टोरेज अकाउंट आ गया और टेलनेट कैन मैनेज एवरीथिंग क्योंकि हमने जो इसको राइट्स दे रखे हैं, ऑनरशिप के राइट्स दे रखे हैं। आप आरबैक ओके। सर्विस हटा दोगे, ये आपका यूज ग्रुप स्टोरेज अकाउंट है, पोर्टल से टेलनेट के लोकेशन से ये डिसअपेयर हो जाएगा। दिस इज द ओके। टू ऑफ आरबैक एंड यूजर्स मैनेजमेंट। अगला हम पार्ट इस पर डिस्कस करेंगे अबाउट अकाउंट, ग्रुप और कस्टम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, वो सारी सर्विसेज। अभी हमने एक अकाउंट क्रिएट किया, फिर उसको एक्सेस प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया, है ना? उसमें हमने उसको हमने एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव वो असाइन किया, राइट? करेक्ट करेक्ट। मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगी तो मैं वो चीजें कर लूंगी। हाँ हाँ, सारी चीजें आपके पास कंटेंट रहेगा, यू कैन मेक योर ऑन काइंड ऑफ नोट्स, है ना, ताकि ये यस। छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ जाए। ओके सर। चलो, I'll upload the recording on same place and we are going to connect day after tomorrow। VPN का पार्ट यस। कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा जो वो एडमिन का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम फोकस करेंगे अपने इस आईएम वाले पार्ट पे। ओके सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।